Hello, students. This is Akshata, your educator. I welcome you all on the platform of Global Online. So, as we know, friends, Global Online platform has launched a complete course for upcoming Maharashtra Law CET Entrance Examination 2023, and in this particular series, we are dealing with the whole syllabus of the Law Entrance Examination. Before moving into the video, friends, let us discuss what are we going to actually deal with today. Today's topic. So today's topic will be from the mental ability, that is seating arrangement. So we'll be discussing what we have to study regarding दिस पर्टिकुलर टॉपिक और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं रिगार्डिंग द सिटिंग अरेंजमेंट. महाराष्ट्र लॉ CET 2023 के लिए जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है वाया ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. द फीचर्स provided to you will be full syllabus live video lectures, full syllabus test series, 2000 plus MCQ question bank and full syllabus notes. All above features of the course will be provided to you in the course fees of rupees 2000. Simply you have to download the global online application or contact us on the given WhatsApp number, which is 81791384413. Global online application is again available on the Play Store also, from where you can get enrolled to the course. It is available on the Play Store, from where you can install the application with such a logo. When you will install the application, you will find such type of interface. In this particular interface, there is an icon named as store icon. If you look downwards, there is a store icon. You have to click on the store icon. You will move to the page called as My Courses, where there is a search tab. In that particular search tab, आपको type करना है CET. Once you will type CET, course along with the fees will be displayed downwards, and hence आप course को enroll कर सकते हो. इस कोर्स के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द होल सिलेबस कैरी आउट किया जाएगा. एट द सेम टाइम मल्टीपल MCQ की प्रैक्टिस कैरी ऑन की जाएगी. सो दिस कोर्स विल मेक श्योर दैट यू विल get maximum marks in the examination and can have guaranteed selection, so you can get enrolled to the course. At the same time, excluding the law CET examination, we have courses for B.Ed CET entrance examination as well as for Maharashtra Set Paper 1 and Maharashtra Set Paper 2 as well. Similarly for UGC Net Paper 1, Paper 2 and CSIR Net Paper 1 and Paper 2 के लिए भी we have different courses available, so you can get enrolled to the course whichever you want to. So let us begin with today's topic, that is the seating arrangement. So the seating arrangement questions are the most common problem types in all the entrance examination, if we know. Okay, these concepts of the seating arrangements or seating or arrangement of any object or a people in many possible ways, इसके basis के ऊपर seating arrangement के questions जो है पूछे जाते हैं. Okay, so the advantage of attempting this question is that in any kind of examination is that you can score maximum marks. So थोड़ा बहुत भी अगर आप basic से जाओगे, then you will be able to fetch marks in this. Okay, more marks by solving a single question as well. So let us begin with the lecture. So now basically seating arrangement, उसके अंदर जो first arrangement रहेगा that will be linear arrangement. The second type of question will be circular arrangement से. सीटिंग अरेंजमेंट इन अ फोटोग्राफ वाला भी क्वेश्चन आ सकता है. सीटिंग अरेंजमेंट इन ए फोटोग्राफ. या फिर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर भी. ओके, सो you just have to go through all the arrangements जितने भी मैंने यहाँ पे mention किए. linear arrangement, circular arrangement, seating arrangement in a photograph and complex arrangement, and on basis of all these arrangements I'll provide you the questions और हम यहाँ पे solve करके लेंगे. okay, so basically the seating arrangement से अगर हम start करेंगे,
seating arrangement, it is a logical arrangement of either object or a people in a logical manner. One has to either perform the arrangement to answer the questions or decode the arrangement by applying the logical analysis. ओके, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर एक तो आपको जो है डिकोड करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन कहाँ पे बैठा है, उसके बेसिस के ऊपर आपको एक लॉजिकल अरेंजमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन दी एग्जामिनेशन. सो अभी चीज़ें समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दी डायरेक्शन एंड सेंस, बेसिकली कुछ चीज़ें आपको करनी है. दैट विल बी अंडरस्टैंड फर्स्ट दी डायरेक्शंस. डायरेक्शन समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Okay, so what is the direction sense that one must go through whenever they are studying seating arrangement? That is person facing north, या फिर इसके अंदर दूसरी चीज जो हो सकती है, दैट इज पर्सन फेसिंग साउथ. Now in question they can directly give you that a person is facing north, a person is facing north and a person is facing south, या फिर a person is facing east direction, या फिर the person is facing the west direction. At that particular time you must be able to understand that whenever a person is facing north side or south side, तो उसका right hand side कहाँ जाना चाहिए, left hand side कहाँ जाना चाहिए, and vice versa. ठीक है, तो whenever a person is facing north, उसका राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन कहाँ जाएगा. पर्सन फेसिंग साउथ, उसका राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन कहाँ जाएगा. एट द सेम टाइम फेसिंग साइड कौन सी रहेगी, एंड द बैक साइड विल बी विच वन. ओके, तो ये समझने के लिए 4 डायरेक्शंस जो हमें पता है, दैट इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये समझना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग, दिस इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज़ द साउथ, दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ द वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, जब कभी वन पर्सन इज फेसिंग द नॉर्थ साइड, suppose this is a person who is facing north direction, who is facing in the north direction, so you have to keep one thing in mind. जब कभी एक person north direction पे face कर रहा है, your right hand, अब जो कुछ भी पेपर के अंदर पेपर को फेस करके जो आप ऐसे बैठेंगे, राइट, अभी एग्जाम के अंदर पेपर को फेस करके आप बैठेंगे, जो आपका राइट डायरेक्शन रहेगा वही राइट डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पर्सन का रहेगा. जो आपका लेफ्ट डायरेक्शन रहेगा वही इस पर्टिकुलर पर्सन का लेफ्ट डायरेक्शन रहेगा. वंस अगेन आई विल रिपीट, वेन एवर इन अ क्वेश्चन दे हैव मेंशन दैट अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ साइड, राइट, एट दैट टाइम 2 चीज़ें समझना इज इम्पॉर्टेंट. वन इज हमारा राइट डायरेक्शन, द वन विच वी आर फेसिंग द पेपर, राइट, पेपर को फेस कर रहे हैं हम, राइट, सो आवर राइट डायरेक्शन इज दैट पर्सनस राइट डायरेक्शन, our left direction is that person's left direction only. Okay, this is for the person facing north direction. Now for the person facing the south direction, for the person facing the south direction, साउथ डायरेक्शन के अंदर अगर एक पर्सन फेस कर रहा है, देन यहाँ पे जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली अपोजिट रहेगी. जो कंडीशन हमने पर्सन फेसिंग नॉर्थ में देखा था उसके कंप्लीट एग्जैक्ट अपोजिट पर्सन फेसिंग साउथ के अंदर हम कंडीशन देखेंगे. इट मीन्स दिस पर्सनस राइट हैंड इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. हमारा जो राइट हैंड साइड है वो पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो पर्सन का राइट हैंड साइड रहेगा. सो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है. One is if a person is facing north, our right hand side is that person's right hand side, our left hand side is that person's left hand side. For a person facing south, our right is that person's left, our left is that person's right. ये 2 चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि
क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल लीनियर अरेंजमेंट में सम पीपल देयर आर 5 पर्सन और 5 पर्सन के अंदर हम अगर ऐसा बोलेंगे कि 3 पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं और 2 साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, देन वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो 3 नॉर्थ में फेस कर रहे हैं उनका राइट डायरेक्शन कौन सा है, जो 2 साउथ में फेस कर रहे हैं उनका राइट डायरेक्शन कौन सा है. ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हद तक छुड़वा सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं. ओके, लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. सो हियर क्लियरली I'll give you one question. Okay, हम एक क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. फॉर एग्जाम्पल दैट 1 minute प्लीज. Okay, so I'm saying you that there are 5 people. There are 5 people. इस 5 पर्सन के अंदर 3 पर्सन ऐसे हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. ओके, और 2 पर्सन ऐसे हैं जो साउथ को फेस कर रहे हैं. अभी 5 पर्सन है, लीनियर अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5. क्या चीज़ समझ आई? जब कभी हम डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते, पहली बात तो ये एरो साइड में निकाल के रखना है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इवन इफ यू आर प्रो फॉर डायरेक्शन एंड सेंस, फिर भी ये आपको साइड में लिख के रखना है. ओके, सेकेंड थिंग आई से यू इज दैट द पर्सन हु आर सीटिंग फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वो अल्टरनेट मैनर में बैठे. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन फर्स्ट पर्सन हु इज फेसिंग नॉर्थ, दिस इज दिस सेकेंड पर्सन. अल्टरनेट मैनर मतलब एक नॉर्थ का आएगा, एक साउथ का आएगा, एक नॉर्थ का आएगा, फिर से दूसरा जो है साउथ का आएगा और फिर से नॉर्थ का आएगा. इट मीन्स ये 2 ऐसे पीपल है, 2 पर्सन है हु आर फेसिंग साउथ एंड दीज आर द 3 पीपल हु आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. सो अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लीनियर अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन आएगा दैट among these 5 people, अगर मैं ऐसी कंडीशन बताऊँ कि among these 5 people there are 2 females, there are 2 females who are facing south. मतलब 2 फीमेल कैंडिडेट्स है और 3 मेल कैंडिडेट्स है. जो फीमेल कैंडिडेट्स है, आई एम सेइंग यू दैट दे आर फेसिंग साउथ. दे आर फेसिंग साउथ, इट मीन्स दे आर फेसिंग दिस डायरेक्शन. ये दोनों भी क्या हो गए? फीमेल हो गए. शी इज ऑल्सो फीमेल. फाइन. रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑल आर मेल. इतना तो समझ आ रहा है. ओके, सो इफ आई टेल यू दैट ऋषभ is at extreme left. एक्सट्रीम लेफ्ट को कौन बैठा है? ऋषभ. सो एक्सट्रीम लेफ्ट डायरेक्शन आपका कौन सा दिख रहा है आपको? दिस इज 1. ये कंडीशन आएगी. ओके, दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट जहां पे ऋषभ बैठा है. ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट हो सकता है क्या? एक चीज अभी एक ध्यान में रखना है. एक्सट्रीम लेफ्ट बोला है तो ऋषभ का एक्सट्रीम लेफ्ट लेना है. इट मीन्स दैट नॉर्थ फेसिंग पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड मतलब अपना लेफ्ट हैंड साइड. इसलिए यहाँ पे जो पोजीशन आएगी दिस विल बी ऑफ ऋषभ. ऋषभ इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इसके अंदर. अभी दूसरी चीज बोली जा सकती है दैट इज बिटवीन टू फीमेल्स राजेश हैज़ बीन प्लेस्ड. मतलब 2 फीमेल्स के अंदर राजेश है. या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऋषभ और राजेश के बीच में जो फीमेल है उसका नाम नेहा है. सो दिस विल बी नेहा. राइट?
ओके, द अदर लेफ्ट फीमेल जिनका हमें नाम पता है, फॉर एग्जाम्पल कोमल है, तो जो कोई भी रहेगा एट द एंड वो ये पर्सन रहेगा, राइट, हुएवर इज लेफ्ट वो लास्ट वाला पर्सन रहेगा, मेल कैंडिडेट। तो अभी इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लाइक कि ऋषभ के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बैठा है, ऋषभ के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बैठा है। नाउ दिस इज ऋषभ के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है, नो वन इज सिटिंग ओवर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऋषभ के राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऋषभ के राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, नेहा। राजेश कौन से पोजीशन पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो राजेश इज ऑन द थर्ड पोजीशन इन द लीनियर अरेंजमेंट, राइट। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट कोमल के एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है। सो आंसर क्या आएगा, जो कोई भी ये पर्सन जिनका नाम है फॉर एग्जाम्पल आर, द आर पर्सन इज टू द राइट ऑफ द कोमल, राइट हैंड साइड ऑफ द कोमल। आंसर राइट है, गलत है। अभी बताना, मैंने अभी बताया था कि हमारा राइट द पर्सन हु इज़ फेसिंग नॉर्थ उनका ही राइट रहेगा। अभी दिस पर्टिकुलर फीमेल इज फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ, सो इसका जो राइट रहेगा ये रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन समझ आएंगे। फिलहाल इतने 2 पॉइंट समझना है हमें, दैट इज कि जब कभी, एक समरी दे देती हूँ, जब कभी अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ बोला जाता है, this is north, this is south, east, west. If a person is facing north अगर बोला जाता है, your right is that person's also right hand side, your left is that person's left. बट अगर कोई साउथ को फेस कर रहा है, उसका फेसिंग साउथ को है, your right hand side is that person's left hand side, vice versa, your left is that person's right. In this way you have to keep in mind, ओके। सो कल के लेक्चर में मैं लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस लूँगी। सो आज का सिर्फ इतना ही बेस समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कोई अगर नॉर्थ को फेस कर रहा है, कोई अगर साउथ को फेस कर रहा है, तो उसके सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर राइट और लेफ्ट क्या आ जाएगा, ओके। इसके बेसिस के ऊपर मैं कल क्वेश्चंस लूँगी। अदर देन दैट अभी सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। मतलब देयर आर 6 पीपल, उसके सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। सो वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, ओके। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टुमारोज लेक्चर आई विल बी कंप्लीटिंग द होल टॉपिक। इसके अंदर लीनियर अरेंजमेंट का मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, देन विल गो फॉर द सर्कुलर अरेंजमेंट, ओके। सो इन टुमारोज लेक्चर बी रेडी दैट आई विल बी टेकिंग द होल क्वेश्चंस ऑन द लीनियर अरेंजमेंट. So thank you for watching the video. Have a great day everyone.